and welcome to We Women Want. This is our weekly show where we celebrate women achievers, we talk about women issues, we empathize with the victims, and we discuss issues so much so that it's becoming a support group that empowers women. And today we have a very special panel with us. Joining us from the Delhi Police is Additional CP Traffic Geeta Rani Verma and DCP Suman Nalwa. She is the PRO Delhi Police. Additional CP Geeta, she's been working, she's now in Delhi, but before that she was working at Andaman and Nicobar. She worked in the tribal areas and did a lot to prevent the suicide rate amongst tribals, and also an area where few women really dare to venture. So I'm going to be asking her about that also. And Suman has been, currently the PRO. She's also been the special branch and in the intelligence services during the CA time, during the farmers' protests, etc. And she's also worked in the special unit for crimes against women and children. So welcome both of you for this on this show. And Geeta ji, I'll begin with you first. Aapka, like I told a little bit about the police service. This is so about a lot of women are coming, but we are still, you're working really in a man's world, going to Andaman and Nicobar, जहाँ पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा women must be going there. तो थोड़ा सा बताएंगे how it feels to be a woman in Delhi Police. मैंने 93 में ज्वाइन किया था और उस समय में आई वाज द सेकंड दानिप्स ऑफिसर, सेकंड वुमेन ऑफिसर थी मैं दिल्ली पुलिस में। तब से मुझे 29 इयर्स हो गए हैं। अब आज की डेट में देखें तो देयर आर लॉट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, लेकिन उस समय में वुमेन ऑफिसर बहुत कम हुआ करती थी। तो तब से लेके आज तक के समय में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है पुलिसिंग में। अब फील्ड में काफ़ी ऑफिसर्स जो हैं वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं, और अब में और तब में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तब वुमेन ऑफिसर को बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लेडी ऑफिसर्स जितनी भी हैं उनको फील्ड में बहुत अच्छे से लगाया जाता है। पर जब आप अंडमान निकोबार गई तो वहाँ पर तो ज़्यादा वुमेन थे उस समय ऑफिसर्स? मैं 2014 में गई थी, तो वुमेन ऑफिसर तो अब आने लगी हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट एरिया में आज भी कम लगाया जाता है। मैं जो है वहाँ पर जब गई थी तो मैं डिफ़िकल्ट एरिया, जो हार्ड एरिया था वहाँ का, जो ट्राइबल एरिया था, उसमें गई थी। आई वाज एसपी निकोबार डिस्ट्रिक्ट, विच इज़ अ वेरी प्रोहिबिटेड एंड प्रोहिबिटेड फॉर नॉर्मल सिटीज़न, उनके लिए नहीं था। और एक ट्राइबल एरिया था, उसमें जाके वहाँ पुलिसिंग करना, जहाँ पे ट्राइबल्स जो हैं वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उनके अपने विलेज मुखिया हैं, वो अपने विलेज मुखिया से ही कंट्रोल हुआ करते थे। तो वहाँ पे पुलिसिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो हमसे जुड़ना नहीं चाहते थे। मैं और आपसे पूछूंगी इसके बारे में, बट सुमन थोड़ा सा अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, you've also worked, you've also written several books, I think, one of them being, I think you authored 5 books, one of them being Room 107, Nanakpura Thana. Your stint in the crimes against women and children especially, I would be interested in that, and being an intelligence officer, what did that entail? It was very challenging. I was in intelligence for 4 years. At that time, we were having a lot of turmoil in the country, in the sense that we had a lot of anti-CA protests, followed by COVID. And COVID also, huh? Yeah. So in COVID, we were tasked with contact tracing, and I was putting myself and my team at risk when we were doing the contact tracing of all the people that were coming from outside India. And uske baad then we had of course the Kisan farmers movement, where the Delhi was like kind of on standstill on 3 borders. So we were interacting with other intelligence agencies as well as our counterparts in other states. So it was an all India kind of a coordination that was required. So it was challenging because of course we were hard pressed for information, as well as communicating with these protesters, establishing communication, and trying to understand them and trying to make them understand us. So it was challenging, but it was good also, because it was a very learning process for you. Huh? Yes. This crimes against women, you were there in Nirbhaya case also. Yeah. You have seen. तो उसके बाद कुछ improvement हुआ है? Do you feel that there has been some? In fact, when Nirbhaya case happened, I was DCP SPUVAC, Special Police Unit for Women and Children. That's a nodal unit of Delhi Police on women and children issues. So, of course, it was a very painful incident that happened. And I remember the first time I heard about it, I got a call.
And like even the police people, they were crying, you know, who were at scene, they were also very emotional about it. So somebody asked me कि इसमें bite दे दो. I said this is not a case where you can give a bite. It is a very painful incident for all of us. And our investigating officers did a wonderful job. Conviction हुआ उसमें. So, but you know, in one sense, this Nirbhaya thing was a landmark for, I think, women's right in India, because suddenly, you know, we had been waiting for some innovation in laws, something will happen, you know, some stringent action will, you know, happen. So a lot of things, then it escalated, the process escalated. So suddenly we had the amendments in the criminal laws. And of course, within the administration also, for the first time, all the government wings were working together. We would have regular meetings with, you know, the PWD, the MCD, the Delhi government, so that, you know, we could do something to But in bring terms systematic of changes. women's issues, women's safety, do you think there has been improvement? Yeah, that's why, that's what I'm telling you, like all the departments came together to address, like structurally, what is unsafe, you know, what are the dark spots. Suddenly the focus shifted away from just crime and criminal. It went into the systematic, how we are Preventive. building the cities, how unsafe they are, what is happening when a woman has to cross a road, whether she can take the subway or not. So we started talking about these issues which were, you know, earlier never talked about. They were ignored. So that was a landmark. Good. That's a very good point actually that you raised. So do you feel that being a woman, that even today you have to prove yourself or go something extra, कि आज थोड़ा सा acceptance level थोड़ा improve हो रहे हैं? Acceptance level improve हुआ है, but beyond that also, I would say that, you know, officially we are all at an equal footing. And at an officer level, there won't be much of a discrimination. But then women lose that advantage when it comes to, you know, someone speaking for them, because they don't have that coterie that works for men. I mean, they will not be very social with their male colleagues and male bosses. They will not be smoking or drinking. So that puts us at a disadvantage. I can say that. But at the lower level, of course, there are some issues, because again, women, we are, you know, deliberately increasing the number of women in police, and the target is by 2025 we will have 33% of women, 25% of women in police, in Delhi police. अभी 13% है, तो 2025 तक है कि इसको 25% तक ले जाएंगे. But at that level, I believe that अभी क्योंकि इंसेप्शन शुरू ही हुआ है, उनका पुलिस में आना शुरू ही हुआ है, तो they are mentally, they are prepared, but उनके घर वाले या उनके spouses या होने वाले spouses, they are not prepared. Right. So that is an extra burden on a woman. She is catering to the home also as well as working. And police की job is not very easy. 24/7 जब करना पड़ता है, shift duties हैं. So they need a partner who's very understanding, who's able to, you know, kind of rise above the gender roles and actually help them out in every sphere of their work. So then it'll work. So today women are doing everything, undercover work होए या special, you know, special intelligence gathering. There is no area where women don't go in police. Am I right? Very true. Very true. आपको भी लगता है कि is there some area fields where women are better qualified जो than men police work में, कहीं में जहाँ women, एक तो of course for handling women related crimes के लिए I think women are more sensitive, but other issues में जिसमें women का ज़्यादा sensitive handling होता है? जहाँ पे फील्ड वर्क में, जहाँ पे लेडीज़ के साथ में काम करना है, लेडीज़ के इश्यूज़ हैं, उसमें जैसे स्पोवर्क है, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे मैरिटल इश्यूज़ आते हैं, जहाँ पे और वीमेन से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, साइबर स्टॉकिंग वगैरह है, Right. इसमें वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं. But sometimes, you know, in terms of कोई आप हमको इंसिडेंट्स बताएंगे, एनेक्डोट जो आपने हैंडल किया, अपनी कहानी बताइए थोड़ा. ट्राइबल्स में आपने सुसाइड रेट्स बहुत कम करवाए हैं, सो दैट मेंट एक्चुअली स्पेंडिंग मोर टाइम टॉकिंग टू देम. वो जो ट्राइबल में मैंने कोशिश की कि वहाँ के जितने भी 5 आइलैंड थे, उन सब में मैं जहाँ भी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी उससे हेलीकॉप्टर से ही थी या शिप से थी, तो हम कभी कभार जा पाते थे. तो जब जाते थे हम, एक तो हेडक्वार्टर था मेरा कार निकोबार, तो वहाँ पे तो हम रेगुलर प्रोग्राम कराते थे. उन रेगुलर प्रोग्राम में हम अपनी बसें उनके पास में भेजा करते थे, क्योंकि अदरवाइज़ वो आते नहीं थे. तो मेरी जो हेड कांस्टेबल थी वो वहीं ट्राइबल एरिया की थी, निकोबारी लड़की थी, डायना करके नाम था उसका. तो शी वॉज द ब्रिज बिटवीन अस.
तो वो उनको जाके बताती थी। वहाँ 15 विलेज थे, 15 विलेज के 15 मुखिया थे कार निकोबार में। तो वो उनको पकड़ पकड़ के लाती थी कि हमारी मैडम बहुत अच्छा काम कराएंगी, कुछ बताएंगी। तो हम जैसे साइबर फ्रॉड बताते थे उनको, छोटी बच्चियां होती थी उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताते थे, ताकि अगर उनके साथ कोई गलत हरकत करे तो उनको पता होना चाहिए कि उनको कैसे रेसिस्ट करना चाहिए। वहाँ पर ड्रग्स और अल्कोहल का बहुत काम है। अल्कोहल बहुत पीते हैं लोग, तो अल्कोहल के क्या नुकसान हैं और उससे कैसे बचा जाए, उस पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे काम किया हमने। साइबर फ्रॉड में हमने ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं और प्लस ये साइबर स्टॉकिंग, इस पे काम किया। तो हम उनको हर बार यही बताते थे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। वहाँ पे लोगों का ज़्यादा वो लोग पढ़ लिख के राज़ी नहीं है कई बार, तो उनको पढ़ना लिखना चाहिए बच्चों को वहाँ के, तो उस पे हम लोगों ने काम किया था। सो आई डिडंट नो दैट पुलिस ये अवेयरनेस के आउटरीच भी करती है। हम लोग करते थे, हम लोग बहुत रेगुलर लेवल पे वहाँ पे करते थे, बच्चों के साथ भी करते थे। इवन हम लोगों ने वहाँ उनको जो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए तो उसकी क्लासेस तक करवाई थी, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा पढ़ें, आगे बढ़ें। तो बच्चों का पढ़ने में थोड़ा सा वहाँ कम मन है। So this community outreach is a good service of the police that we don't get to hear about much. I didn't. Yeah, even as a PRO, we have been now coming out monthly with a monthly campaign. Right now, our campaign "अकेले नहीं हैं आप" is running. अच्छा. Wherein we are reaching out to women and girls कि इसको report करें if they have undergone any trauma, any abuse, anything. So they should come out and report it. But how, a lot of people are scared of reporting के फिर पुलिस एक्शन देर में लेती है, तब तक जो अब्यूज़र है वो और उनके ऊपर भारी पड़ता है। ये एप्रीहेंशन है, बट वी हैव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द ये जो धारणा बनी हुई है, मोस्ट ऑफ दीज एक्सपीरियंस दे आर again talked about by someone else. So nobody has personally experienced it, but since it is propagated, so that's why to counter that we have started our campaigns. So we have a women police cop speaking. You can go to our website, or we have put these outdoor media में भी हमने अपने पोस्टर लगाए हैं with a QR code. So where our police sub inspector is speaking about it, how we can tackle this problem. And I believe awareness is the key. Yes, that there is somebody there to listen, and the options are there. And now with Delhi Police, we are reaching out in many ways. Like you can do an online reporting. You can just, go to our website, lodge your complaint. The thing is, if you report, so we are putting many of our services on your mobile apps. So you can download our mobile app, and there are, I think, around 50 services that are at the click of your finger. So you can access our services, you can lodge a complaint. And I believe that if more and more women lodge their complaint, even if they don't want any legal action कि हमें नहीं जाना कोर्ट वगैरह, तो मुझे लगता है एक डेटा बैंक वो तो बनेगा कि कौन सा एरिया किस समय में सेंसिटिव है वुमेन के लिए, so that कुछ प्रिवेंशन भी हो। नहीं तो मैं तो अपना थाने में बैठे अपना काम कर रहा हूँ, आई डोंट इवन नो एनीथिंग। करेक्ट, सो यू आल्सो गेट फीडबैक, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश होगा। सो आई बिलीव रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think it's a good point. Before we go for a break, मैं आपको एक उसके बारे में और बताना चाह रही थी, जो सुसाइड के लिए हम लोगों ने वर्कशॉप की थी। दैट वाज द उस समय में 3rd टॉप मोस्ट एरिया था ये, जहाँ पे सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा था। तो वहाँ पर हमने उनको ये तो बताया ही कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, जितने रिलीजियस लीडर थे हमने उनको बुलाया, जैसे क्रिश्चियन में और मुस्लिम में और पंडित में। तो उन लोगों ने पीछे का सारा बताया कि आपको किस लिए नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ सिन। वो लोग ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। हाँ, तो इमोशनल तो इमोशनली हमने उनको कनेक्ट कराया, हमने रिलीजियस बैकग्राउंड से उनको कनेक्ट कराया, और वैसे भी बताया कि आप लोग समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो घबरा जाते हैं। तो हमने उनको बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा चल रही हैं उनके बारे में बताया, ताकि वो ये समझें कि उनका प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, और अगर है भी तो वो बातचीत से या किसी भी तरीके से, जो भी जितने भी तरीके हैं उनसे हम सुलझा सकते हैं। ओके, बिफोर आई गो फॉर अ ब्रेक, मेरे से आपसे एक और सवाल है। यू आर एडिशनल सीपी ट्रैफिक, तो विमेन ड्राइवर्स के बारे में बहुत फैलाते हैं कि सर मुझे ये पूछना है कि चालान किसके ज़्यादा कटते हैं, मेन के या विमेन के?
चालान तो मेन के ही ज़्यादा कटते हैं क्योंकि हमारा women drivers तो फालतू में बैठ लेकिन ये जो कहा जाता है कि विमेन ड्राइवर सेफ नहीं है, ये गलत कहते हैं लोग। विमेन ड्राइवर ज़्यादा सेफ होके ड्राइव करते हैं, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक दैट इज अ गुड नोट टू टेक अ ब्रेक ऑन, क्योंकि फालतू में जो अफवाह फैलाई जा रही है, आज वी गॉट द स्टेटिस्टिक्स स्ट्रेट फ्रॉम द एडिशनल सीपी ट्रैफिक। बट आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। अब ब्रेक के बाद थोड़े से वी हैव एन ऑडियंस ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, उनसे वील टेक देयर क्वेश्चंस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Hello and welcome back to We Women Want. Today we are in conversation with two officials from the Delhi Police. We have the additional CP Traffic Geeta Rani Verma and the DCP PRO Delhi Police Suman Nalwa. And we have an audience of young professionals. Any questions for them? आपके पास कोई सवाल है जो अभी हमने बातचीत करी है उसके बारे में? We were talking about that nowadays people are speaking up about the rape cases or any injustice that is happening to women. But is there any measures taken, like the things are happening yet right now, the things are going on, but still the people are doing suicides, doing because they are not able to tolerate these things that that they are going through. So is there any measure being taking up related to these kind of things? Excellent question. I would say that we have become less resilient. हमारे को अपने आप को और अपने साथ वालों को और रिजिलियंट बनाना है कि कुछ भी आए, मतलब वी हैव टू कॉन्कर। मैं तो वही कहती हूँ, झांसी की रानी की तरह बनना है। सो अपने आप को रिजिलियंट रखना है। और कोई और आपको लगता है आपके आसपास नज़दीक में भी कोई somebody has undergone some trauma, so how to bring them up and how to kind of if you want to report it, and if you want to fight it. So if we are together, a feeling of togetherness has to be imbibed. There has to be a cohesive group where you can reach out and talk about it and report it. तो हमारे भी जितने भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हमारा सशक्ति एक चलता है दिल्ली पुलिस का, वेयर वी गो एंड टीच सेल्फ डिफेंस. सो इट इज़ नॉट जस्ट सेल्फ डिफेंस. When we go, we teach them. एक तो जब पुलिस वाले जा रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ पुलिस वाले भी नॉर्मल है, they don't have devil's ears or something, कुछ ऐसा नहीं है. तो they become confident कि पुलिस वाले approachable है. Number 2, we talk to them about laws, how laws are protecting women. And then number 3, we tell them कि आपके ये helpline numbers हैं, एक SOS का बटन है, आप हमारी ऐप में जाएंगे. So if you don't have time to kind of dial a number or call anyone, you can always shake your phone or press an SOS button so that immediately your coordinates are flashed to our control room and we can reach you. And in addition to that, till the PCR van reaches in 3 to 4 minutes, you are able to defend yourself. So उसका एक बहुत positive impact जाता है. So more than self defense, it's a confidence that we give. So I think आप सीखेंगे, आप भी become a part of that, and bring others also along. So we are reaching out. Now it is a turn for you people to reach out to us also. What is the app called? Sushakti. Sushakti is a program. Our app is Tatpar. Himmat Plus. Tatpar app है जिसमें 50 services हैं Delhi Police की. You can get it from Google or Apple Play Store. So it's available there. Okay. So it will give you the geo coordinates of your nearest police station also. Oh, lovely. That's a good thing to keep. Thank you, ma'am. आपको कुछ ऐड करना है गीता to this? नहीं, बस इसमें इतना ही ऐड करना चाहूँगी कि जो इन्होंने बात कही है कि आपको आगे बढ़ के बताना पड़ेगा. तो शुरू में ये फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी आप यंग गर्ल्स हैं या विमेन हैं, वो फर्स्ट टाइम में बात नहीं कहती हैं अपनी. वो काफ़ी समय तक टॉलरेट करती हैं. वो तब तक टॉलरेट करती हैं जब तक कि वो उनका ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है. तो उस ब्रेकिंग पॉइंट पर मत आने दीजिए. उससे पहले फ़र्स्ट टाइम में ही अगर कोशिश करें, जैसे ही आपको समस्या समझ में आ रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे कोई हरास कर रहा है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, पीछे से कोई स्टॉक कर रहा है मेरे को, या लगातार स्टॉक कर रहा है और मेरे को फ़ोन पे स्टॉक कर रहा है, या कोई भी और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोशिश करिए फर्स्ट टाइम में ही एड्रेस करने की और फर्स्ट टाइम में ही अपना हाथ रेज करने की. Both. Any more questions? जैसे हम लोग इतना आगे आ चुके हैं, विमेन इतना आगे बढ़ रही है, बट स्टिल ये कहा जाता है फोर्स में विमेन्स काम कर रही हैं. स्टिल ये कहा जाता है स्टीरियोटाइप है ये कि विमेन वीक होती हैं और वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इतना आगे आने के बाद भी. तो ये स्टीरियोटाइप कैसे ख़त्म होगा मैम, जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं प्रोफेशनली और हम अपने घर को भी संभालते हैं, अपने प्रोफेशन को भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, स्टिल हमको ये
सुनने को मिलता है कि हम वीक हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये स्टीरियोटाइप कैसे ब्रेक होगा मैम? तो वो तो आप ही ब्रेक कर सकते हो, उसके लिए वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दो। You continue to be on your journey. You continue to rise and be where you want to be. That's my suggestion. Don't bother about what people have to say. Just Be go yourself. forward. मेन एंड विमेन में कुछ भी फ़र्क नहीं है सिवाय एक फिज़िकली जो आप डिफरेंस है। मेंटली विमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर। अगर आप शादी देखें तो शादी में मेन और विमेन में कम से कम 3-4 साल का फ़र्क होता है। Yes, ma'am. लेकिन लड़कियां कितने अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ संभालती हैं। इट मीन्स कि उनका मेंटल बैलेंस ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बायस तो रहेंगे, लेकिन वो बायस आप हो गए, आपसे नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो धीरे धीरे करके ही ख़त्म होंगे। एकदम से आप सोचें कि यूटोपियन सिचुएशन में आप आ जाएंगे और एक बहुत अच्छी सिचुएशन आपके सामने होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो होते हैं, बट अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से, अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग। Any other? हेलो मैम, मैं सुरभि सिंह राजपूत। मैम मेरा क्वेश्चन है कि लड़के भी काम करते हैं और लड़कियां भी काम करती है, और दोनों मतलब कोई भी जो भी नौकरी की जो पोस्ट होती है उसके लिए सेम मतलब एजुकेशन होती है और सेम टैलेंट की ज़रूरत होती है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे इंडस्ट्री है, कुछ ऐसे जगह है, वहाँ पे लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है, और ये कैसे ख़त्म होगा? और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पुलिस कंप्लेंट भी की जाती है, तब पुलिस ही उल्टे में कहते हैं कि मैम इसमें कोई ये केस नहीं है, ये नहीं है, मतलब वो लोग भी एक्सक्यूज दे देते हैं। आप बहुत ऐसे compromise जगह कर लो। Compromise is a big word which women have been hearing for a very long time. I think कुछ ऐसे कौन सी, I mean whether it's work related compromise or otherwise, you will have to tell me that कि किस टाइप का compromise। कई positions ऐसी हैं, गवर्नमेंट के laws भी हैं जिसमें है कि पहले नाइट ड्यूटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को बंद कर दे, तो इंडस्ट्रीज़ में था कि रात को वुमेन की ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। दैट वाज बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, जो भी उनका थॉट रहा होगा। सो वो ऑपरेशनली कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होंगी, एंड आई बिलीव जहाँ पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है, सो इट इज़ मे बी बिकॉज अ वुमेन विल हैव टू गो एट 6। अगर कोई आदमी होगा उसको बोलेंगे तुम 9-10 बजे तक ओवर टाइम कर लो विदाउट एनी इशू। सो ये प्राइवेट सेक्टर में होगा ऑफ कोर्स। सो अभी हमारे लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वी कैन एक्चुअली गो इनटू दैट, टैप इनटू दैट कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। लेकिन हम अपने हुनर के साथ व्हेन वी डोंट लीव एनी ऑप्शन, हम इतने अच्छे हैं, हम इतना बढ़िया काम करते हैं कि हम कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते, तो तब मज़ा आता है। और कॉम्प्रोमाइज़ करना ना करना, अगेन इट इज़ योर पर्सपेक्टिव, आपकी इच्छा है। सो यू कैन ऑलवेज फाइट फॉर योर राइट, नहीं मुझे नहीं करना है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस, दिस इज़ माई मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसको मैंने क्रॉस नहीं करना है। सो आई वॉन्ट दिस एक्शन टू बी टेकन एंड इट विल बी टेकन, आई अश्योर यू ऑफ दैट। और वी आर रीचेबल नाउ। अब जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं दे आर ऑल्सो रीचेबल। आपका नीचे नहीं है तो योर SHO, ACP, DCP, इवन कमिश्नर ऑफ पुलिस टुडे is having Jansampark. Every day he is meeting with people who come with the complaints. Okay. So everybody is available to you to talk to and to get redressal of your grievance. One question I wanted to ask you, Geeta ji, when you joined, जब आपने कहा मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो what was the reaction from your family और आपके? नहीं, मैंने नहीं कहा कि मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, फिर कैसे डिसाइड किया? क्योंकि मेरा दूर दूर तक पुलिस या किसी भी जॉब को करने का कोई इरादा ही नहीं था। आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग इन माई माइंड कि मुझे नौकरी भी करनी चाहिए। ये चांस की बात है कि मेरा उसी टाइम में पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। मैंने टॉप किया गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। मेरी शादी हो गई थी तब तक। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप जब इतने अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर लेती हैं तो एक बार सिविल सर्विसेज दे दीजिए। तो हमने सिविल सर्विसेज दे दिया और उसमें सिलेक्शन हो गया। पुलिस में जाने का दूर दूर तक विचार नहीं था, लेकिन सेकंड सर्विस मुझे पुलिस की मिली और मैंने वो ऑप्ट कर लिया। एंड ट्रेनिंग में हाउ वाज इट, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में मेरे साथ में 15 लड़के थे मेरे साथ में और मैं अकेली थी। अच्छा। और 78 के बाद में कोई विमेन ऑफिसर जो थी वो ज्वाइन की थी।
मेरे से पहले एक 78 में ऑफिसर थी, उसके बाद मैं सेकंड ऑफिसर में थी। लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की, और जो मेरे आईजी साहब थे उन्होंने लास्ट में मेरे हस्बैंड से कहा भी कि आपकी वाइफ बहुत बहादुर महिला हैं, और इसने आज तक एक कंप्लेंट मुझे नहीं की कि इसे कोई परेशानी हुई है ट्रेनिंग में। Again, you know, what when made you you opt for the police? आपने कब क्या it was again not an option. It was in my higher, you know, list, in a higher choice. But once I got into it, I mean, I guess my family was pretty happy because I was in my final year when my father died. So we were an all-woman household. हम लोग 4 बहनें हैं थी. My sister just expired recently. तो at that time, I mean, मेरे से young थी एक, और मतलब एक ऑल वुमेन हाउस होल्ड था. सो वी हैड एक्सपीरियंस, यू नो, जो आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि एवरीबडी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड. कोई भी आएगा, कोई एमसीडी वाला आएगा, कोई इलेक्ट्रिक वाला. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर थिंग्स डन, क्योंकि आपको ब्राइट देना नहीं आएगा, आपको बात करना नहीं आएगा. So then once I got into police, so my elder sister, the first sentence she, you know, when she heard, you know, I was telling her on the phone that I got through. So she said, Suman, अब तुम्हें मौका मिला है जो तुम करना चाहती थी, you know, especially for women. So now you can actually do it. So I mean, they were my inspiration. My mom was my inspiration. So it was pretty good. नहीं, जो इन्होंने कहा है really strikes a chord, because you know, being a woman you can see, you know, just getting a normal day's work. मेरे घर में मेरे हस्बैंड बोले, तुम तो आज तक कभी हॉस्टल नहीं गई, कभी कोएड में नहीं पढ़ी, तुम कैसे कर पाओगी? ये 15 लड़के हैं, 15 लड़कों के साथ तुम कैसे ट्रेनिंग करोगी? आई सेड मैं कर लूँगी, जबकि उससे पहले मैं कहीं आउटर वर्ल्ड में कहीं नहीं निकली थी. आई वॉज अ हाउस वाइफ. My God. So any regrets? No. No. And your not at children? all. मेरे बच्चे बहुत खुश हैं मेरे से. They are very happy. They are very proud of that. No regrets in joining the police. None at all. So will you advise them to join the police force? Of course. Any of you been inspired by this conversation to join? मुझे लगता है कि you know, once you are donning a uniform, आप अपने आप को ही नहीं empower कर रहे. People who are looking at you, women who are looking at you also get empowered. I was principal of a police training school. तो मैं देखती थी कि मतलब डे 1 पर सब आती थी चुन्नी पहन के, एकदम वो करके ढक के एकदम आ रही हैं अपना सूटकेस लेके, और सेकेंड डे दे वुड बी इन देयर ट्रैक सूट्स एंड रनिंग, एंड विद इन अ वीक दे विल बी इन यूनिफॉर्म एंड यू नो डूइंग देयर परेड. सो इट वाज सच अ मेटामॉर्फोसिस. मज़ा आ जाता था देख के. फिर 3 महीने में उनको छुट्टी देते थे, बोलते अब जाओ घर. फिर जब वो आती थी फिर उनसे ऐसे लिखाती थी कि अब बताओ पुलिस में आने के बाद जीवन में बदलाव. एंड दे यूज्ड टू कम अप विद सच ब्यूटीफुल स्टोरीज कि कहाँ उनको एकदम ट्रैश की तरह गांव में मानते थे, अब सब सलाह के लिए आ रहे हैं कि छाओ हम क्या करें. यू नो, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे स्टार्टेड हैविंग इन द विलेज इटसेल्फ. That is true. वो एक बहुत ही बढ़िया, मतलब मजा आता था. The respect of a uniform. जब मैं 3 महीने बाद अपने घर वापस आई फिलौर से, तो मैं कभी अपने घर से कहीं बाहर नहीं निकली थी उससे पहले. या तो अपने फादर के साथ जाती थी या हस्बैंड के साथ. तो फर्स्ट टाइम फिलौर से, फिलौर जालंधर के पास में है, जालंधर में पड़ता है, तो फिलौर से ट्रेन पकड़ के जब दिल्ली आई तो मैं अकेली आई. एंड एवरीबडी वाज लाइक, आर यू एथलीट? और मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं, मतलब आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं चली जाऊंगी और मैं पहुंच जाऊंगी, जो कभी उससे पहले अपने फादर और अपने हस्बैंड या ब्रदर के अलावा कभी अकेली नहीं निकली थी. Well, stories like this make us proud, and this is what we celebrate in our show, this thing. So we've totally run out of time, but thank you both for coming and sharing your story with us on We Women Want. But that's it for now. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.